فلم کی شروعات دو بچوں سے ہوتی ہے جو بہت اچھے دوست ہیں۔ لڑکی کا نام کلیئر تھا لیکن وہ اپنے دوست سے بڑی تھی۔ کلیئر اور اس کا دوست ایک کینڈی کی دکان کے باہر رکتے ہیں تاکہ وہ اندر سے کچھ کینڈی خرید سکے جسے وہ واقعی کھانے کے لیے ترس رہے تھے۔ کلیئر اپنی دوست سے کہتی ہے کہ اب میں اندر جا کر کینڈی خریدوں گی، تم بھی آ کر کچھ خرید لو۔ یہ سن کر اس کا دوست معصومیت سے کہتا ہے لیکن کلیئر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کلیئر کہتی ہے کوئی بات نہیں، چلو یہ کرتے ہیں، چلو کینڈی چوری کرتے ہیں، تم اندر جاؤ اور دکاندار کا دھیان بٹاؤ، تب تک میں مٹھائیاں چرا دوں گا۔ کلیئر کا دوست یہ منصوبہ سن کر بہت ڈر گیا کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی چوری نہیں کی تھی۔ کلیئر اس سے کہتی ہے کہ اتنا نہ سوچو، تم بس اندر جاؤ اور کھو جانے کا بہانہ کرو۔ اسے بتاؤ کہ میں اپنے والد کو تلاش نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس پر دکاندار سوچے گا کہ آپ کے حواس ختم ہو گئے ہیں اور وہ آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ جب تک آپ اس کا دھیان بٹائیں گے میں مٹھائیاں چرا چکا ہوگا۔ اب اس کا دوست نہ چاہتے ہوئے بھی کلیئر کی بات مانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ کام ختم ہونے کے بعد ہم یہاں ملیں گے، جس کے بعد دونوں اندر جاتے ہیں اور پلان کے مطابق سب کچھ کرتے ہیں اور کلیئر کینڈی چرا کر باہر آتی ہے۔ وہ ایک جگہ کھڑی ہو کر کینڈی کھانے لگی لیکن پھر اس نے ایک تاریک جگہ سے آواز سنی۔ کلیئر نے پوچھا کون ہے، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب وہ کافی دنوں سے اپنے دوست کا انتظار کر رہی تھی لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا، تو اب کلیئر خود دکان کے اندر جا کر چیک کرتا ہے لیکن اسے وہاں اپنا دوست نہیں ملتا۔ جب اس نے دکاندار سے پوچھا کہ میرا دوست کہاں ہے، پھر اس نے جواب دیا کہ اس کے والد آئے اور اسے لے گئے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا، اس کے پاپا یہاں نہیں آئے تھے، پھر اسے کون لے گیا؟ اور اس کے بعد کلیئر کے دوست کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اسی طرح کئی اور بچے بھی شہر سے لاپتہ ہوئے تھے۔ اب اس سب کے پیچھے جو شخص تھا، یعنی وہ اغواکار جس نے بچے کو اغوا کیا تھا، پولیس نے پکڑ لیا اور اسے 25 سال کی سزا بھی سنائی گئی، جس کے بعد ہم 25 سال بعد کا وقت براہ راست دیکھتے ہیں جہاں کلیئر اب بڑی ہو چکی ہے اور اس کے دوست کے والد اس کے ساتھ بیٹھے تھے جس کا نام بل تھا۔ اسے اب بھی اپنے بیٹے کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا ابھی تک زندہ ہے۔ کلیئر اب ایک براڈ کاسٹر کے طور پر کام کرتا ہے جس کا ریڈیو پر ایک چھوٹا چینل ہے، اور آج کلیئر کے دوست کو لاپتہ ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں۔ بل اس سے مدد کے لیے کہتا ہے کہ آپ اپنے براڈ کاسٹ چینل پر میرے بیٹے کے بارے میں بتائیں تاکہ جو لوگ آپ کی بات سنیں وہ میرے بیٹے کو ڈھونڈنے میں مدد کر سکیں۔ جس پر کلیئر کہتی ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں چچا، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اب اس کا دوست کبھی نہیں ملے گا۔ بل کہتا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹے کو کسی طرح ڈھونڈنا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے بیٹا۔ اس پر کلیئر کہتا ہے کہ ہاں چچا، میں بہرحال آپ کی مدد کروں گا اور ہم اسے ڈھونڈنے ضرور جائیں گے۔ پھر بل نے اپنے ایک دوست سے کلیئر کا تعارف کرایا جو اس پورے علاقے کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا کیونکہ وہ یہاں کافی عرصے سے رہ رہی تھی۔ اب ہم قصبے کے بوڑھے لوگوں اور جاسوسوں سمیت کچھ لوگوں کے انٹرویوز دیکھتے ہیں۔ ایک سینئر جاسوس کا کہنا ہے کہ میں نے 25 سال پہلے اس کیس پر کام کیا تھا۔ یہ معاملہ بہت سنگین بن گیا تھا کیونکہ ایک کے بعد ایک بچے قصبے سے غائب ہو رہے تھے۔ یہ سب کے لیے حیران کن اور پریشان کن تھا کیونکہ نہ تو بچے زندہ ملے اور نہ ہی ان کی لاشیں ملی، جس کی وجہ سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور ہر کوئی خوف کے عالم میں رہنے لگا۔ اب بل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کی تلاش کے لیے موڑ آتے ہیں۔ موڑ دراصل ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ویران اور خالی ہے، لیکن کلیئر ان کے ساتھ یہاں نہیں آتی کیونکہ وہ ڈر گئی تھی، کیونکہ بچپن میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا خوف اب بھی اس کے دل میں تھا۔ اب کلیئر اس سینئر جاسوس کو جاتا ہے جس نے 25 سال پہلے اس کیس پر کام کیا تھا۔ کلیئر انہیں بتاتا ہے کہ بل موڑ میں اپنے بیٹے کی تلاش کر رہا ہے۔ یہ سن کر جاسوس حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بل ایسا کیوں کر رہا ہے۔
क्योंकि 25 साल पहले उन्होंने मोर को तलाश किया था, लेकिन उन्हें वहां एक बच्चा भी नहीं मिला। बच्चे के बारे में भूल जाओ, वहां बच्चों की किसी चीज का सुराग तक नहीं मिला। अब क्लेयर बिल के घर जाता है, जहां वो खिड़की से देखती है कि बिल के साथ एक आदमी है जो लॉकेट के साथ कुछ कर रहा है। जब वो अंदर आती है तो उसे मालूम होता है कि ये शख्स नफ्सियाती है, यानी जिसमें ऐसी खूबियां और ताकतें हों कि वो उन चीजों को जानता था, और ये ताकतें गैर मामूली चीजों को भी महसूस कर सकती है, जैसे भूत, रूह वगैरह। और उन ताकतों को इस्तेमाल करते हुए नफ्सियाती इन्हें बताता है कि बिल का बेटा कहाँ से मिल सकता है। क्लेयर का ख्याल है कि बिल अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक साइकिक की मदद ले रहा है। इसका मतलब है कि कुछ है, और वो जगह जो साइकिक ने इन्हें बताई थी वो मिवर प्री थी। जिसके बाद वो बिल के बेटे को ढूंढने मिवर के पास आते हैं। क्लेयर भी इनके साथ आया था, हालांकि वो मोर के पास आने से डरती थी, लेकिन वो फिर भी आती है क्योंकि वो भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहती है। इसकी तलाश के दौरान मकामी लोगों को बिल के बेटे यानी क्लेयर के दोस्त का जूता मिल गया। वो उसे उठाकर अपने पास रखते हैं। अब क्लेयर को वहां अजीब सा लगता है, जिसकी वजह से वो डरने लगती है। उसे लगा जैसे यहां कोई बड़ी और बुरी ताकत है और वो यहां से कभी नहीं निकल सकेगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की और भागते हुए वो सड़क पर पहुंच जाती है। अगले दिन बिल अपने बेटे का जूता पुलिस के पास ले गया और उन्हें बताया कि वो चाहता है कि वो केस दोबारा खोलें ताकि वो अपने बेटे को तलाश कर सके। लेकिन ये सबूत उसे ढूंढने के लिए काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने बिल की मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमने फिर सीनियर जासूस को देखा जो कह रहा था कि हमने कभी अगवाकार को बेनकाब नहीं किया और ना ही कभी ये बताया कि उसने मगवी बच्चों के साथ क्या किया। से हमें ये महसूस होता है कि यकीनी तौर पर कुछ बहुत गलत है, और अगर किसी को हकीकत का इल्म है तो भी वो छुपा रहा है। अब क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं, जहां बिल क्लेयर को अपने बारे में सब कुछ बताता है कि हाँ, वो एक साइकिक है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सके। लेकिन हाँ, उस नफ्सियाती की एक बेटी है जिसका नाम एलेनोर है, जिसके पास अपने बाप से बहुत ज्यादा ताकतें हैं, और इसका दावा है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सकती है। लेकिन नफ्सियाती ऐसा करने से इनकार करता है, ये कहकर कि मैं अपनी बेटी को किसी किस्म के खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दरअसल उसकी बीवी की मौत के बाद उसकी बेटी एलेनोर उसके लिए सब कुछ है, जिसे वो किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। वो उसे इस केस से दूर रखना चाहता है ताकि उसकी जान ना जाए। लेकिन बिल को किसी भी कीमत पर अपने बेटे को तलाश करना होगा। उसने पहले ही एलेनोर को बुलाया है। जब एलेनोर पहुंचता है तो उसके वालिद नफ्सियाती उस पर नाराज हो जाते हैं। तब एलेनोर कहती है, पापा इतना मत सोचें और परेशान न हों। मैं अपनी मर्जी से आई हूं और मुझे लगता है कि हमें बिल की मदद करनी चाहिए। यहाँ बाप बेटी के दरमियान कुछ और बातें हुई, जिसकी वजह से एलेनोर के वालिद भी उसका साथ देने पर राजी हो जाते हैं। वो मेज पर मोर का खत फैलाकर उसके गिर्द बैठ गए। अब एलेनोर नक्शो निगार पर एक जगह देखती है, फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और फिर भी उसी मुकाम की तरफ इशारा करती रहती है। फिर बिल उस जगह को नक्शो निगार पर निशानजद करता है। अब एलिनोर को अपने इख्तियारात का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना था, जिसकी वजह से वो वचियानी वगैरह की तरह बहुत अजीब महसूस करती थी, और शायद यही वजह थी कि उसके वालिद एलिनोर को इस मामले में आने से मना कर रहे थे। अब अगले दिन उन तमाम लोगों को मोर जाना था। एलिनोर भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके वालिद कहते हैं कि बेटी वो जगह अच्छी नहीं है, वहां खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो अपने वालिद की बात नहीं मानती और जाने की जिद करती है, जिसके बाद अगले दिन ये तमाम लोग मोर पहुंचकर आगे बढ़ते हैं। इसके साथ वो वहां की हर चीज की वीडियो भी बना रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलिनोर को वहां एक बच्चे की मौजूदगी का एहसास हुआ, जो दरअसल एक बच्चे की रूह था। एलिनोर ने उससे पूछा कि वो कौन है। बच्चे की रूह कहती है कि वो नहीं जानती और मैं अपने माँ बाप को भी भूल गया हूँ। एलिनोर ने उससे पूछा,
अच्छा बताओ, तुम्हें कत्ल करने के बाद कहाँ दफन किया गया था? तो लड़की एलिनोर को काबू करने की कोशिश करती है। वो अपनी ताकत से उसे गड्ढे में फेंक देती है। एलिनोर जख्मी हो जाती है और हर कोई उसके पास जाता है। फिर एलिनोर के वालिद उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन यहाँ बल समझ गया कि बच्चे की रूह जरूर कुछ कहना चाहती है। चुनांचा वो उसी जगह खुदाई शुरू कर देता है और हैरान कुन बात यह है कि उसे वहां एक लड़की की लाश भी मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि उसी रूह वाली लड़की की थी। इसका मतलब है कि 25 साल पहले उसके वालिद ने उसे मार कर यहाँ पहरा दिया था। इसका मतलब है कि उसने एलेनोर के सवाल का जवाब दिया था कि उसे कहाँ दफन किया गया था। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और फिर हम 4 हफ्तों के बाद कहानी देखते हैं, जहां बल अब भी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और खुलारी उसकी हर तरह से मदद कर रहा है। उसके बाद क्लेयर और बल साइकिक के घर चले गए, जहां एलेनोर उनसे कहती है कि काचुआ हमेशा मेरे साथ है, जो अक्सर मेरी हिफाजत करता है जब भी मैं मुसीबत में हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो मेरी मदद करता है। हम दोनों एक दूसरे पर बहुत मेहरबान हैं और वो मेरे लिए एक साथी रूह का काम करता है। अब नक्सियाती अपनी बेटी एलेनोर के जरिए रूह से बात करता है और कहता है कि इन बच्चों के बारे में बताओ जिन्हें मार कर मोड़ पर दफन किया गया था। फिर नफ्सियाती ने रूह से पूछा, क्या तुम हमें महसूस कर सकते हो? जिस पर उन्होंने हाँ में जवाब दिया। वो बताता है कि इन तमाम बच्चों की रूहें जिनकी लाशें अंधेरे में रहती हैं। अब यहाँ बिल उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो वो रूह नक्शे पर पॉइंटर की मदद से एक जगह को निशानजद करती है। ऐसा करने के बाद वो यहां से चला जाता है, जिसके बाद ये लोग दोबारा मोड़ गए जहां पर रूह ने निशान लगाया था। थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें एक अजीब लंबा पत्थर नजर आया, जिस पर अजीबो गरीब तहरीरें बनी हुई थी। जिसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ गए, लेकिन फिर यहाँ बारिश हुई और ये लोग आगे बढ़ने से कासिर रहे। चुनांचे उन्होंने खुद वहां खेमा लगाया। एलेनर इन सब से कहती है, अब क्लेयर को उसी सीनियर जासूस का फोन आया जिसने कहा कि आप लोगों को मोड़ नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहां खतरा आपके ख्याल से ज्यादा है। ये सुनकर क्लेयर परेशान हो गया और वो सबको ये बात बताती है और फिर उसे मोड़ जाने से मना करती है। लेकिन बल उसकी बात नहीं मानता और अगले दिन वो फिर से मोड़ जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। लेकिन इस बार बल के दोस्त इनके पास ढूंढने की कोशिश करते हैं। साथ नहीं गए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मस्जिद किसी मुश्किल में फंस जाए और इस बार सिर्फ क्लेयर और बल जाएं। जब वो वहां पहुंचे तो बल एक जगह पर आया और क्लेयर की तरफ बंदूक का इशारा किया। क्लेयर को ये बात बहुत अजीब लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि बल ऐसा क्यों कर रहा है। बल इससे कहता है कि अब तुम्हें यही मरना है ताकि मैं अपने बेटे को वापस ला सकूं। ये सुनकर क्लेयर ने हर्ब से पूछा, लेकिन क्यों? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? और तुम्हें किसने कहा था कि मुझे मारकर तुम अपना बेटा वापस हासिल कर लोगे? फिर बल इससे कहता है कि कल रात मैंने एक आवाज सुनी जिसमें कहा गया था कि अगर तुम क्लेयर को कुर्बान कर दो, उसे हम पर कुर्बान करो, फिर तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये सुनकर क्लेयर रोने लगी। वो कहती है कि ये गलत है। मेरी जान लेकर तुम अपने बेटे को कभी वापस नहीं ला सकते, क्योंकि वो 25 साल पहले ही चला गया था, जो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन बल फिर भी उसकी बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। क्लेयर रोता है और अपनी जान की भीख मांगता है कि प्लीज चच्चा मुझे मत मारो, लेकिन वो क्लेयर को उसी पत्थर पर ले जाता है। उसी दौरान वहां एक भेड़ आती है जो क्लेयर पर हमला करती है। भीड़ उसे मार देती है और मर जाती है, जबकि क्लेयर खाई में गिर जाता है। और फिर दूसरे बच्चों की रूहें आकर क्लेयर पर हमला करती है और इस तरह क्लेयर मर जाता है। जैसे ही वो मरता है, हम देखते हैं कि बल का बेटा भी वहां आता है और अपने बाप से मिलने वापस चला जाता है। दोनों बाप बेटा बिल आखिर 25 साल बाद मिलते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत खुश थे। अब आपके जहन में बहुत सी बातें चल रही होंगी कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए मैं आप पर वाजे कर दूं। दर हकीकत एक शैतान इस जगह रहता है, क्योंकि वो दलदल का गड्ढा दरअसल जहन्नम का रास्ता है, जहां से बदरूह बच्चों की कुर्बानियां लेता था
اور بھیڑیں بچوں کی روحیں تھیں جنہیں شیطان نے اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا، اور وہ قربانی دینے میں شیطان کی مدد کرتے تھے کیونکہ شیطان نے انہیں اپنا غلام بنا لیا تھا، اور یہ سب کچھ پچھلے کئی سالوں سے ہو رہا تھا۔ اب ڈیمن نے خود بل کے کان میں سرگوشی کی تھی کہ اگر اس نے کلیئر کی قربانی دی تو اسے اس کا بیٹا واپس مل جائے گا، اور آخر کار وہی ہوا، کیونکہ قربانیاں صرف لڑکوں کی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ صرف لڑکوں کی لاشیں ملی اور صرف لڑکے ہی مرے، جیسے اس لڑکی کی لاش جس میں بھوت لگی ہوئی تھی، اور ایلینور کی موت۔ لیکن اس دن اغوا کار نے کلیئر کے دوست کو گنتی سے قربانی کے لیے اغوا کر لیا، حالانکہ اس دن کلیئر کی قربانی دینی تھی، اس لیے ڈیمن نے کلیئر کے دوست کو قتل نہیں کیا۔ اور جب بل نے کلیئر کی قربانی دی تو وعدے کے مطابق ڈیمن نے اپنے بیٹے کو واپس کر دیا اور وہ کلیئر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب اس اغوا کار کی بات کرتے ہیں کہ اس نے بچوں کو اغوا کر کے شیطان کو قربانی کے لیے کیوں دیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپو کو قربانی کے لیے شیطان کو دیتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شیطان کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، اور اس کی پیروی کرنے کی وجہ سے یہ سب شیطان کے لیے کرتا تھا۔ اب یہ چکر ایک بار پھر شروع ہونے والا تھا، کیونکہ 25 سال بعد اغوا کرنے والا آزاد ہو جائے گا، اور وہ شیطان جسے وہ اپنا خدا سمجھتا ہے اس کے لیے لڑکیوں کی قربانیاں لے آئے گا، جس کی وجہ سے کون جانے مزید کتنی غریب بچیاں قربانیوں کا نشانہ بنیں گی۔ اور اس خوفناک انجام کے ساتھ یہ کہانی اور یہ فلم بھی یہی ختم ہو جاتی ہے۔